Namaste Gurukulians, I hope you all are fit and fine. Today I am going to discuss the second unit of class 12th physics, that is current electricity. Students, in the previous unit in electrostatics, you have studied about the charges and its properties and its effects whenever they are at rest. Now we will study the mechanism of charges whenever they are in motion. And in class 10th, you have already studied that whenever the charges are in motion, they constitute the current. So, current electricity, what it represents? It is a branch of physics which deals with the charges whenever they are in motion. So, I am writing the definition: branch of physics which deals with charges when they are in motion, or whenever the charges move inside the conductor, then they give rise to the current. So first definition we have: electric current, the rate of flow of charges is known as electric current. तो रेट का मीनिंग क्या? पर यूनिट टाइम. सो करंट इज इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग डिवाइड बाय टाइम. ठीक है. इन सिंबॉलिक फॉर्म वी रिप्रेजेंट करंट बाय आई, चार्ज बाय क्यू, टाइम बाय टी. इफ यू टॉक अबाउट इट्स एसआई यूनिट, इट इज ampere. The SI unit of charge is coulomb, and the SI unit of time is second. If I write 1 ampere as 1 coulomb divided by 1 second, then we can make the definition of 1 ampere. It is a current flowing in the conductor when 1 coulomb charge flows in 1 second. Clear? So students, it is all about your फॉर्मूला रिगार्डिंग द इलेक्ट्रिक करंट एंड एसआई यूनिट. अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे कैसे पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, किसी क्वेश्चन में आपको चार्ज गिवन है, टाइम गिवन है, देन यू कैन कैलकुलेट द करंट बाय दिस फॉर्मूला. यदि मैं किसी टाइम इंटरवल में करंट को पता करना चाहता हूँ, सपोज करो कि करंट फ्लो कर रहा है 0 to 5 सेकेंड तक, और इन बिटवीन 2 सेकेंड to 4 सेकेंड यू हैव टू कैलकुलेट द करंट, देन हाउ you will calculate it. For a time interval, we have to calculate I average, and it is equal to delta Q divided by delta T. Suppose in between 1 second to 5 सेकेंड, 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के बीच आपको करंट चाहिए, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा? 5 - 1 4 सेकेंड. और ड्यूरिंग 1 to 5 सेकेंड जितना चार्ज फ्लो कर रहा है, you have to take that charge in this equation, then you will calculate I average. Second, at instant time, किसी पर्टिकुलर टाइम पर यदि आपको करंट की वैल्यू को पता करना है, सपोज मैं कहता हूं कि at t equal to 2 सेकेंड आई वांट टू नो द वैल्यू ऑफ करंट. तो पर्टिकुलर टाइम पर जो हम करंट की बात करते हैं वो होता है आई इंस्टेंटेनियस करंट, एंड इट इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी. इट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू टी. हाउ? सपोज इन अ क्वेश्चन इट इज गिवन दैट चार्ज फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1. means charge depends on t, and you have to calculate current at t equal to 2 second. Now at t equal to 2 second, it means at a particular instant we have to calculate the value of current. So I have to take dq upon dt. So I instantaneous dq upon dt. So first derivative of t square with respect to t, it will be 2t plus
टी का डेरिवेटिव 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0. सो करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, वो कैसे आएगा हमारे पास? 2, पुट द वैल्यू ऑफ टी एज 2, 2 2 जा 4 प्लस 5, तो 5 एम्पियर. क्लियर? एक और कैटेगरी होती है, यहां पर हमसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कई बार. यहां पर तो हमें चार्ज गिवन है इन टर्म ऑफ टी, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आई. इन सेकेंड क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज गिवन इन टर्म ऑफ टी लाइक दिस, आई इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी. ये आपके पास कोई भी इक्वेशन है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट चार्ज flowing from t equal to 1 second to t equal to 3 सेकेंड. तो यहां पर हमें क्या पता करना है कि 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच कितना चार्ज फ्लो करता है. अब यहां पर रिवर्स हो चुका है क्वेश्चन. हमारे पास आई की वैल्यू डी के अपॉन डी टी. यहां पर तो बिल्कुल सिंपल है, क्यों गिवन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दो आप. लेकिन यहां पर उल्टा है, आपको करंट गिवन है. देन हाउ यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू? सी, here I equal to t square plus t, and we know very well that I equal to dk upon dt, so we will put dk upon dt. So from here dq is equal to t square plus t into dt. क्लियर है ये? हमें टोटल चार्ज निकालना है 1 to 3 सेकेंड के बीच. सो इंटीग्रेट बोथ साइड. ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू का, इट विल गिव क्यू इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी. आप ऐसे लिख लो इसको बेशक, इस तरह से. जो प्लस है मैंने बीच में लगा दिया, पहला इंटीग्रेशन टी स्क्वायर पर, फिर इंटीग्रेशन टी पर. अच्छा, हमें अब क्या करना है? चार्ज निकालना 1 to 3 सेकेंड के बीच. तो यहां पर लिमिट क्या लग जाएगी? 1 to 3 सेकेंड. क्लियर? सो इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इट इज इक्वल टू टी क्यूब अपॉन 3. लिमिट कहां से कहां तक है? 1 to 3. इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर प्लस 2, एंड द लिमिट इज फ्रॉम 1 to 3. So first we will put the value of t as 3, then minus, then we will put the value of t as 1. So 1/3 बाहर ले आओ. सबसे पहले t की जगह 3 रखो, फिर माइनस, फिर लोअर जो लिमिट है 1, तो 1 क्यूब प्लस 1/2 बाहर, टी स्क्वायर पहले 3 पुट करोगे, माइनस, फिर लोअर लिमिट कितना है? 1, तो यू विल पुट t एज 1. क्लियर? सो व्हेन यू विल सोल्व इट, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ q. देखते हैं कितनी आई है. 1/3, 3 3 जा 27, 1 प्लस 1/2, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1, इट इज 8. ठीक है, 27 माइनस 1 26 डिवाइड बाय 3 प्लस 4. तो यहां से जो भी वैल्यू है आप निकाल लेना. ठीक, तो यहां पर 2 कैटेगरी के क्वेश्चन आप हमेशा ध्यान रखना. पहला, आपको क्यू गिवन हो सकता है, यू हैव टू कैलकुलेट आई. आपको आई गिवन हो सकता है, देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्यू. और दोनों किससे निकलेंगे? आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी फॉर्मूले से.
नाउ whenever you connect a cell और बैटरी विद द कंडक्टर, हमें पता है कि वहाँ पर करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है, और हम ये पूरी तरह से जानते हैं कि एक बैटरी या सेल जिसका एक एंड पॉजिटिव है एक एंड नेगेटिव है, तो करंट ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड, क्लियर। एंड सेकेंड, करंट का मैग्नीट्यूड भी है, तो करंट के पास उसकी डायरेक्शन भी है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन होता है ये। वेक्टर क्वांटिटी के बारे में हमें ये पता होता है कि द क्वांटिटीज विच हैव डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, और करंट के पास दोनों होता है, बट इसके बावजूद करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज, देखते हैं। current having magnitude and direction, but it is scalar quantity. The question comes why it is scalar quantity. देखते हैं. Suppose we have two wires and current in first wire is 3 ampere, in second wire is suppose 2 ampere, and it is the third wire. When we see the current in this wire, it comes 5 ampere. So 5 ampere simply it is a sum of 3 and 2 ampere. अब यहाँ पर सबसे मेन कॉन्ट्राडिक्शन क्या है? जब आपने प्लस वन में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा था, वहां पर मान लो दो वेक्टर है किसी पर्टिकुलर एंगल पर, देन रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आती थी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा का अंडर रूट, क्लियर। यदि करंट वेक्टर क्वांटिटी होता तो ये जो रिजल्टेंट है वो किसके वाला आ जाता? 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू 2 कॉस थीटा, क्लियर। थीटा की वैल्यू आप मान लो चलो 60 डिग्री, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, यहां पर तो सिंपली 3 + 2 5 एम्पियर आते हैं हमारे पास। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि जो करंट है इट डज नॉट ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इट ओबेज द सिंपल रूल्स ऑफ अलजेब्रा। सो करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो आई एम राइटिंग current does not obey the rules of vector addition, clear, and so it is not a vector quantity. So students, now it is all about the concept regarding the current. Now we have a small topic named as current carriers in different type of materials. करंट कैरियर का मीनिंग क्या? वो कैरियर जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी मटेरियल में करंट फ्लो के लिए। यदि आप मेटल की बात करें तो करंट कैरियर क्या हो गए? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उन्हीं के कारण करंट मेटल में फ्लो करता है। In electrolyte, that is for NaCl H2SO4, you have seen in the chemistry inside the cell, clear. In electrolyte there are the positive and negative ions due to which they conduct the current through them. Third, we have gases. Basically gases, they are the insulator, but in ionized form there are the positive ions and electrons which are responsible for the current through the gases. So current carriers, करंट कैरियर्स का मीनिंग क्या है? चार्ज पार्टिकल
whose flow is responsible for current. In metals, these are free electrons. In electrolyte, that is for NaCl or H2SO4, positive ions and negative ions. Third, gases, they are the insulator, but in ionized form there are positive ions and electrons which are responsible for the current through the gases. Clear? So now we have third topic, that is maintenance of steady current in the circuit. आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, जब भी हम सेल को अटैच करते हैं विद द कंडक्टर तो करंट कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है. कभी आपने ये सोचा कि ऐसा होता क्यों है, करंट क्यों कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता रहता है? ऐसा बैटरी और सेल के पास क्या होता है कि जिसके कारण वो करंट को मेंटेन करके रखता है इन द सर्किट? सो वी हैव मेंटेनेंस ऑफ steady current in circuit. Okay, look, you have a conductor, this one, and we have connected it with the help of a cell, and cell has two electrodes, one positive and one negative. जब भी फिजिक्स में मैं बात करता हूँ पॉजिटिव चार्ज की, एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज जब भी मैं कहूँगा कि दे आर फ्लोइंग, दे डोंट फ्लो, ये बात हमेशा ध्यान रखना. जब भी पॉजिटिव चार्ज की बात की जाती है वो केवल आपको समझाने के लिए की जाती है. सारी बात हम करते हैं इलेक्ट्रॉन की ही, ठीक है? तो यहाँ पर भी मैं पॉजिटिव चार्ज की ही बात करूँगा, वो केवल आपको एक जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने के लिए करते हैं हम लोग. ओके, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. जो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इट इज एट हायर पोटेंशियल एंड दिस नेगेटिव इलेक्ट्रोड इज एट लोअर पोटेंशियल. क्लियर? सो इफ यू टॉक अबाउट द पॉजिटिव चार्जेस will get flow from higher potential to lower potential very easily, but when they will come at negative electrodes they have to again move towards the positive electrode. ठीक है? क्योंकि यदि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव की तरफ नहीं गए तो इसका मीनिंग क्या, धीरे धीरे जितना भी पॉजिटिव चार्ज है वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर, तो ऑटोमेटिकली द वर्किंग ऑफ दिस सेल विल गेट स्टॉप. सो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म होता है वो होता है यहाँ पर, जब नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करती है. इफ यू लुक एट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल, it has two electrodes, positive and negative, and in between there is electrolyte which is a conducting medium. Now when positive charges comes at negative electrode, then what the cell does, cell क्या करता है, सेल इस पॉजिटिव चार्ज पर वर्क डन करता है so that it can move from lower potential to higher potential, and that work done to move unit positive charge from lower potential to higher potential is known as EMF of that cell. EMF means electromotive force. Name suggest करता force, but it is not a force. EMF कोई force नहीं होता. EMF क्या होता है कि work done to move unit positive charge from lower potential to higher potential, and work done divided by charge होता गया पोटेंशियल डिफरेंस. सो यदि आपको ईएमएफ की यूनिट पूछ ली जाए तो ये क्या होगी, वोल्ट. क्लियर? सो
मेंटेनेंस ऑफ स्टेडी करंट, इसमें हम क्या कहने वाले हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। एक सेल एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो चार्जेस को लगातार मूव करवाने में हेल्प करता है। क्लियर? एंड जब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर आएंगे तो अगेन दे विल कम टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। वो होता क्यों है? ड्यू टू इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ बैटरी। बैटरी क्या करती है? उन पॉजिटिव चार्जेस को यहां से यहां पर लेकर आ जाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस है ड्यू टू इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ अ सेल इन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड। क्लियर? सो हियर आई एम राइटिंग EMF, that is electromotive force, work done to move unit positive charge from lower potential to हायर पोटेंशियल। बस आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि होता क्यों है? ड्यू टू इट्स EMF। क्लियर? और कभी आपसे ये पूछ ले कि सेल के जो दो इलेक्ट्रोड है उनके बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, इसका केवल एक ही आंसर होता है, ड्यू टू इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ द सेल। ठीक है? और उसी के कारण जो चार्जेस नेगेटिव पर आते हैं वो चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव हो जाते हैं। क्लियर? सो नाउ student, one of the most important topic of this chapter, that is drift velocity. If you look at the CBSE paper of 2020, it has come in 2 marks. ठीक है? कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? ड्राइव इट्स एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, जब भी आप बात करते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीनिंग होता है कि अंडर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? यदि आप कोई कंडक्टर की बात करते हैं तो इनिशियली इन द कंडक्टर देयर इज नो करंट। यदि आप किसी आयरन की रोड को अपने हाथ में ले लेते हैं तो आयरन की रोड में उस टाइम करंट नहीं होता है। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि करंट नहीं होता तो इसका मीनिंग ये होना चाहिए कि वहां पर कोई भी चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, दे आर नॉट फ्लोइंग। लेकिन वहां पर इलेक्ट्रॉन भी फ्लो करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो करंट होता है ऑन दैट रोड इज इक्वल टू 0। वो होता कैसे है? अब मैं आपको बताऊंगा। ये सुनाओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसकी लिख रहा हूं कि द एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स in opposite to direction of electric field। ठीक है? सो सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं किया है। लेट वी हैव अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A। अब यहां पर करंट की वैल्यू को मैं कहता हूं 0 है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्लो करते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं दे आर इन रैंडम डायरेक्शन। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जब भी चार्जेस फ्लो करे, लेकिन वो फ्लो कहां करे? किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तभी करंट बनता है। लेकिन यहां पर मैकेनिज्म क्या होता है कि देर आर अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर, सपोज 1 2 3 4 सो एन। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो इनकी रैंडम डायरेक्शन होती है। ये इलेक्ट्रॉन मान लो इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर। इफ यू लुक एट द एवरेज वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी मान लो u1 u2 u3 एंड u4। लेकिन ओवरऑल इफ यू लुक एट u एवरेज,
it is equal to u1 plus u2 plus u3 plus up to un divided by n. It is equal to 0, where u1, u2, u3 up to un are the thermal velocities of the electrons. अब ये थर्मल वेलोसिटी का मीनिंग क्या है? जब भी आप रूम टेम्परेचर की बात करो अबाउट 27-28 डिग्री, तो इलेक्ट्रॉन के पास उस टेम्परेचर पर कुछ एनर्जी होती है, तो उस एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करती है, ठीक है। और वो जो रैंडम डायरेक्शन के कारण जो यू एवरेज आता है वो कितना होता है, 0, ठीक है। और एक और बात, यदि आप u1, u2, u3 अप टू un इन वेलोसिटीज की वैल्यू को देखो, इन वेलोसिटी की वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 10⁴ टू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी हाई स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं इन रैंडम डायरेक्शन। ठीक है। सो इनिशियली ड्यू टू u average 0 there is no current, in the conductor. Now we will connect a cell with the conductor. And due to potential difference of the cell, and electric field will be generated across the ends of the conductor. ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट कौन मूव करता है, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट कैसे होगी, इस प्रकार होगी। क्लियर। सो अंडर द एप्लीकेशन ऑफ E, that is electric field, a force is there on electron. Clear? And उस फोर्स की वैल्यू क्या होती है, F इक्वल टू E, that is electronic charge, and E represent electric field. So F is equal to small into E with negative sign. ठीक है। Okay, now due to this force, electrons, so due to this force electrons gets accelerates, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू वो कितनी आएगी, a इक्वल टू एफ ओवर एम। एफ की वैल्यू क्या, -c इंटू ई डिवाइड बाय एम। क्लियर। सो इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ सेकंड, क्योंकि जब फाइनल रिजल्ट हम निकालेंगे देन वी रिक्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड इन दैट। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि जब इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेलरेशन मिली तो उनकी वेलोसिटी लगातार बढ़नी चाहिए, तो इसका मीनिंग क्या है, उनकी जो मूवमेंट है फ्लो होने की वो बहुत तेज होनी चाहिए। ये हमारे माइंड में आता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास इस एक्सेलरेशन के साथ साथ उनकी थर्मल वेलोसिटी भी होती है, और उस थर्मल वेलोसिटी के कारण वो लगातार क्या कर रहे होते हैं, रैंडम मोशन। तो जो रैंडम मोशन करने की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन ओवरऑल होता क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो पोजीशन है धीरे धीरे खिसकती रहती है। हमारे माइंड में ये आता है कि जब एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन को मिला तो इलेक्ट्रॉन फटाफट ऐसे मूव करेंगे, लेकिन इन एक्चुअल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इस तरह मूव करने की बजाय धीरे धीरे ऐसे मूव करता रहता है। वो मैकेनिज्म कैसे होता है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन द वेलोसिटी of electrons increases, but due to collision with positive ions, that is kernels, क्योंकि जब भी एटम में से इलेक्ट्रॉन
डिटैच होकर फ्री मूव करता है तो बाद में कौन बचता है? पॉजिटिव आयन, और वो पूरे कंडक्टर में फैले होते हैं। कोलिजन पॉजिटिव आयन्स, द वेलोसिटी डिक्रीजेस। और जो इनका रिजल्ट है ओवरऑल, ये सबसे मेन है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन अटेन a small constant velocity of order 10 power minus 4 approximate meter per second in opposite to direction of इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये सारा मैकेनिज्म मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ इन एक्चुअल में होता क्या है, ये उसकी समरी है। सबसे पहले इस एक्सेलरेशन के कारण वेलोसिटी बढ़ती है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं दे आर कोलाइडिंग विद द पॉजिटिव आयंस आल्सो। तो जो बढ़ी हुई वेलोसिटी है उससे जब टकराएंगे अगेन ड्यू टू कोलिजन वेलोसिटी गेट्स डिक्रीजेस। क्लियर? सो इन दोनों को जो रिजल्ट है वो क्या था? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन एक बिल्कुल स्मॉल कांस्टेंट वेलोसिटी अटेन कर लेता है जिसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर? देखते कैसे है ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन में। मान लो ये कह रहा हूं, ये कंडक्टर के अंदर की बात है, ठीक है? तो उसके सराउंडिंग में लगातार वो क्या करता है? पॉजिटिव आयन से टकराता रहता है। सपोज रैंडम डायरेक्शन ऐसे है, पहले ऐसे टकराया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर इस तरफ, ठीक है? अब यहाँ पर नेट रिजल्ट देखना, इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेशन के कारण उसकी गति बढ़ती है। जैसे ही कोलिजन हुआ उसकी वेलोसिटी कम हो गई। अगेन जब ये यहाँ से यहाँ आएगा अगेन इट विल अटेन सम वेलोसिटी। जब यहाँ पर टकराएगा अगेन इट विल लूज इट्स वेलोसिटी। तो रैंडम डायरेक्शन में ऐसा होता चला जाएगा, वेलोसिटी बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी घटेगी। ओवरऑल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बिल्कुल स्मॉल वेलोसिटी को अटेन कर लेता है और उसी वेलोसिटी का वो खिसकता रहता है। वो पूरी तरह ऐसे मूव नहीं करता है, खिसकता रहेगा। कैसे? देखो रैंडम डायरेक्शन हुई और नेट रिजल्ट देखो, पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था, अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच चुका है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट। क्लियर? सो इस प्रकार से रैंडम डायरेक्शन में कोलिजन भी हुआ। क्लियर? एक्सेलरेशन के कारण उसकी गति बढ़ी भी, कोलिजन के कारण उसकी गति कम भी हुई। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट भी हुआ। तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मान लो ये है, रैंडम डायरेक्शन में कोलाइड कर करके इधर से इधर आ गया, फिर इधर से इधर, इधर से इधर। क्लियर? और ये जो नेट एवरेज वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की बहुत बहुत स्मॉल होती। नाउ what we have to calculate the average velocity. Clear? So students, now यहां पर मैंने 3 डायग्राम आपके सामने बनाए हैं। ये पहले इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता हूं, उसकी वेलोसिटी है इनिशियल u1, थर्मल वेलोसिटी u1। क्लियर? पहले यहां पर कोलाइड होता, फिर यहां पर कोलाइड होगा, और यहां पर मैं टाइम लिख रहा हूं τ1। ये टाइम क्या है? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, यहां से यहां तक के बीच जितना उसने टाइम लिया दैट इज τ1। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के लिए भी इनिशियल वेलोसिटी u2, रिलैक्सेशन टाइम τ2। ये nth के लिए तो इनिशियल वेलोसिटी un एंड रिलैक्सेशन टाइम इज τn। क्लियर? सो एट एनी टाइम t v1 की वैल्यू क्या आएगी? v1 इज इक्वल टू u1 प्लस a इंटू τ1। क्लियर? ये τ1, τ2, τn क्या है? ये कोलिजन टाइम होता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। क्लियर? सो एट एनी इंस्टेंट v1 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? u1 प्लस a τ1। v2 की वैल्यू u2 प्लस a τ2। In the same way, Vn is equal to Un plus a tau n. Now, according to definition of drift velocity, we have to
take their average. So now V average is equal to V1 plus V2 up to Vn divided by n. ठीक है. So V average is equal to V1 की वैल्यू U1 plus A tau 1 प्लस V2 की वैल्यू U2 प्लस A tau 2 अप टू UN प्लस A tau n डिवाइड बाय n. ठीक है. अब क्या करेंगे हम U1 U2 UN ये टर्म अलग करेंगे, A tau 1 A tau 2 A tau n इन टर्म को हम अलग कर लेंगे. तो V एवरेज will become U1 plus U2 plus up to UN divided by n plus A tau 1 plus A tau 2 up to A tau n divided by n. ठीक है. नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0. सो V एवरेज 0 प्लस. अच्छा यहां से इस पूरी टर्म में से A कॉमन आ जाएगा. अंदर क्या बचेगा tau 1 प्लस tau 2 अप टू tau n डिवाइड बाय n. अच्छा tau 1 tau 2 tau n what they are representing? They are the relaxation time, means time between two successive collision. जब हम इनका एवरेज लेंगे that will give average relaxation time. So V average A into tau average. From equation second A की वैल्यू माइनस E इंटू कैपिटल E डिवाइड बाय M tau average. So it is a final result of drift velocity. या तो आप इसको V average लिखो या हम इसको VD भी लिखते हैं. ठीक है. अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि what माइनस साइन रिप्रेजेंट्स हियर. माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट द motion of electron या velocity of electron is in opposite to the direction of electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ऐसे है तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इस तरफ मूव कर रहा है. ठीक है. ये बात हमेशा ध्यान रखना है. ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी. इसी फॉर्मूले से हम उसकी डेफिनेशन को बनाएंगे. अच्छा मोबिलिटी, मोबाइल होना, चलना. किसी भी मटेरियल की जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है कि जो चार्ज कैरियर वो कितने मोबाइल है, कितने अच्छे तरीके से मूव कर सकती है. ठीक है. और मोबिलिटी की न्यूमेरिकल जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि कोई भी चार्ज कैरियर कितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर कर सकता है अंडर द एप्लीकेशन ऑफ यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड. कि यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द चार्ज कैरियर इज नोन एज मोबिलिटी ऑफ दैट चार्ज कैरियर. सो इस एक्सप्रेशन को हमेशा ध्यान रखना. वी डी इक्वल टू माइनस ई इंटू कैपिटल ई डिवाइड बाय एम टाउ एवरेज. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, मोबिलिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू बाय दिस लेटर एंड इट इज इक्वल टू drift velocity acquired per unit इलेक्ट्रिक फील्ड. सो एक्चुअल में ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है उसका मैग्नीट्यूड. सो मैग्नीट्यूड ऑफ
drift velocity acquired per unit electric field. So drift velocity acquired per unit electric field. So nu equal to Vd over E. ठीक है, तो Vd over E ये आपको क्या देगा, स्मॉल e टाउ एवरेज डिवाइड बाय m. ठीक है, सो यदि आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रॉन के लिए मोबिलिटी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पुट कर दो. यदि आपको पॉजिटिव चार्ज के लिए मोबिलिटी निकालना है, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू को इंट्रोड्यूस कर दो. क्लियर. सो फ्रॉम हियर एक और रिजल्ट आता है, जो मोबिलिटी है वो डिपेंड करती है टाउ एवरेज पर. ठीक. सो नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. देखेंगे, कंसीडर अ कंडक्टर हैविंग लेंथ L and area of cross section A and I is the current flowing across that conductor. ठीक है, तो इसमें मुझे करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज Vd उनके बीच रिलेशन चाहिए. इससे पहले मैं एक फैक्टर को डिनोट करता हूं n, स्मॉल n. इट इज नंबर डेंसिटी. नंबर डेंसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक. अच्छा, इसका वॉल्यूम कितना, A इंटू एल. एक यूनिट वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, और A इंटू एल वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, वी विल मल्टीप्लाई AL बाई n. सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वॉल्यूम AL, इट इज इक्वल टू NaL. ठीक है. नाउ टोटल चार्ज फ्लोइंग दैट इज Q. आप सबको पता है, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, टोटल चार्ज इज इक्वल टू N इंटू E. N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू E. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास कितना है, NaL इंटू E, वो क्या आ जाएगा, टोटल चार्ज. ये क्लियर है. अच्छा, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम. तो मैं वही रिलेशन यहां पर लगाने वाला हूं. तो क्यू तो मेरे पास आ गया, अब टाइम भी मुझे चाहिए. सो अब मान लो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर फ्लो कर रहा है, तो टाइम किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉन की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है. सो टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस कंडक्टर, इट इज इक्वल टू L ओवर Vd. चार्ज भी मेरे पास है, टाइम भी मेरे पास है. तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, करंट Q अपॉन T. Q की वैल्यू NaLe, T टाइम की वैल्यू L ओवर Vd. सो N इक्वल टू NeAVd. क्लियर. तो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेगा उतना ही ज़्यादा करंट उस कंडक्टर में फ्लो करेगा. क्लियर. सो इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ओके स्टूडेंट्स, नाउ यहाँ पर ये एंड हो जाता है आज का जो टॉपिक है. अच्छा, आपने पहला जो टॉपिक करंट किया उसमें आपने I इक्वल टू Q अपॉन T की है. अच्छा, वहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखना भूल गया था, I इक्वल टू Q अपॉन T. यदि कभी आपसे ये पूछ ले कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर, Q क्या होता है, टोटल चार्ज. अच्छा, अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन टोटल चार्ज किसके इक्वल है, N इंटू E. क्लियर. सो इट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर. ठीक है. ओके, बेस्ड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां पर आपके पास एक न्यूमेरिकल मैं आपको करवा रहा हूं.
and you can write the statement number density of electron in copper conductor is 8.5 into 10 power 28 per meter cube. So small n is equal to 8.5 into 10 power 28 per meter cube. ठीक है. How long does an electron take to drift from one end of a wire 3 मीटर लॉन्ग टू अदर एंड? एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है 3 मीटर, तो एक एंड से दूसरे एंड पर इलेक्ट्रॉन को पहुंचना है, तो इलेक्ट्रॉन कितना टाइम लेगा? ठीक है. अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इट इज गिवन एज 2 into 10 power -6 मीटर स्क्वायर एंड करंट इन द कंडक्टर इज 3 एम्पियर और लेंथ कितना है 3 मीटर. अच्छा, पहले क्वेश्चन को समझा करो कि क्वेश्चन में गिवन क्या है, निकालना क्या है. आपके पास एक कंडक्टर है इस प्रकार का, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है, इसकी लेंथ आपको गिवन है. ठीक है. इसके अंदर जो करंट है वो भी आपको गिवन है, इसके अंदर जो नंबर डेंसिटी है n वो भी गिवन. अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कि यहां से यहां इलेक्ट्रॉन जब पहुंचेगा तो कितना टाइम लेगा. अच्छा, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहां से यहां पहुंचना है तो डिस्टेंस यहां से यहां कितना कवर करेगा l. इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है vd, तो टाइम हमारे पास आ जाएगा. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, L मेरे पास है, VD यहाँ पर कहीं नहीं है, तो सबसे पहले मुझे VD की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. I इक्वल टू NEA VD. सो VD इज इक्वल टू I ओवर NEA. इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो तो L ओवर I ओवर NEA. ठीक है. तो L की वैल्यू क्या है 3 मीटर, n की वैल्यू 8.5 इंटू 10 पावर 28, e की वैल्यू 1.6 इंटू 10 पावर -19 इंटू a की वैल्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 इंटू 10 पावर -6 डिवाइड बाय करंट I, दैट इज 3 एम्पियर. So by solving it you will get the value of time. So maximum numerical, जब भी आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करते हो स्टूडेंट्स, तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सिंपल आपको दिया जा सकता है कि करंट निकालो तो NEA VD से निकाल लोगे, VD निकालना है तो I ओवर NEA. इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले VD निकालना है, फिर टाइम निकालना था. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, it is all about today's lecture. In the next lecture you will study the deduction of Ohm's law, the concept regarding electrical resistivity and resistance. Clear? Then color coding of the resistors. So students, have a nice day and thank you.